Hello friends, welcome to everyone in this video discussion. Today we are going to discuss vector algebra. In previous classes, you have learned about physical quantities and vector is one of them. So no doubt it will be easy to you to understand. To start discussion, let us take an example. Consider a wind weather report. One can report the wind speed by saying it is 10 km per hour. But this information is not sufficient for a person who wants to go for sailing. He would also like to know the wind's direction. A more complete wind weather report might say that the wind is blowing at 10 km per hour towards the southwest direction. This discussion leads us to the fact that some quantities can be described meaningfully by its magnitude, but some quantities need both magnitude and direction. It means physical quantities are classified into two categories. Number one, the quantities that can be expressed by its magnitude only, called scalar quantities or scalars. A quantity such as height, length are scalars. Another quantity of physical quantity. The quantities that need both magnitude and direction to express them completely, called vector quantities or vector. A quantity such as force, displacement or velocity is called a vector and is represented by a directed line segment. The arrow points in the direction of the action and its length give the magnitude of the action. Students, there are some terms which you have to must know before discussing vector. फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उसका पर्पस केवल आपका एग्जाम में मार्क्स लेना ही ना हो। जिस टॉपिक को भी आप पढ़ते हैं उसकी डेप्थ में जाइए, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करिए, क्योंकि आगे चल के आपको इस फील्ड में बहुत कुछ करना है। कॉम्पिटिटिव टाइम है, केवल मार्क्स लेकर के हम एक ब्राइट फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकते। टू एवरी वेक्टर पी क्यू द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड। फर्स्ट टर्म लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पी क्यू is the distance between P and Q denoted by vector PQ। यदि किसी वेक्टर की लेंथ के बारे में बात की जा रही है, it means we are discussing about magnitude of vector। Second term support, the line of unlimited length of which the directed line segment is a part is called the support of the line segment। Third term, sense। Actually sense is also show the direction। The sense of a vector is from its initial point to its terminal point। Then sense of vector PQ is from
point P to point Q, and sense of vector QP, naturally it is from point Q to point P. In this chapter we will discuss different type of vectors. So let us take some definitions. Type of vector. First, zero vector. As this word shows that there is nothing. Zero vector, no magnitude. By definition, a vector whose initial and terminal points coincide is called a zero vector or null vector. Sometimes we call it void vector and denoted by vector 0. फ्रेंड्स, इस डिस्कशन में मैं कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन आपके लिए दूंगा जिसके बारे में आपको सोचना है। जैसा कि वेक्टर की डेफिनेशन में कहा गया कि वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको शो करने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए है, मैग्नीट्यूड की जरूरत भी होती है। पर इस डेफिनेशन में देखिए आप, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स दोनों कोइंसाइड होंगे तो इनके बीच की लेंथ जीरो होगी, और जब लेंथ जीरो होगी तब फिर डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ऑल जीरोस आर नल वेक्टर्स आर टेकन टू बी इक्वल एंड देयर डायरेक्शन आर क्वाइट आर्बिट्रेरी. This is remarkable point. The direction of zero vector is always quite arbitrary. It means where we can take any direction for this vector. फिर यहाँ पे एक डाउट, जब डायरेक्शन हम अपने मन से ले सकते हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड जीरो है, तब फिर क्या इसको वेक्टर कहना जस्टिफाई होगा? चूंकि इसकी आवश्यकता है इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म दिया गया, और इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। वेक्टर अदर देन नल वेक्टर्स आर कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वो प्रॉपर वेक्टर होगा। लेकिन यदि मैग्नीट्यूड जीरो है तब फिर हम ना होते हुए भी जीरो वेक्टर कहेंगे, और ये एक इम्प्रॉपर वेक्टर होगा। नेक्स्ट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, that is unity, is called a unit vector. The unit vector in the direction of vector A, given vector A is denoted by A cap. यहाँ पे एक्चुअली कैप का सिंबल नहीं है, लेकिन यदि किसी भी स्केलर वैल्यू के ऊपर कैप का सिंबल है तो वो एक यूनिट वेक्टर को शो करेगा। यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं और एक ऐसा वेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा। सो हियर unit vector of vector A is equal vector A divided by magnitude of vector A. इसको हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में।
Collinear vectors. Collinear word shows that all vectors are on a line. So two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line, irrespective of their magnitude and directions. Suppose A and B are two vectors. Then if these vectors are collinear, then we can express vector A is equal lambda into vector B for any scalar value lambda. Next vector, coplanar vectors. Two or more than two vectors are said to be coplanar if they are parallel to the same plane. कोप्लेनर वर्ड शो करता है कि ऐसे वेक्टर्स जो कि किसी एक ही प्लेन पर हों, यदि सभी वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तब वो कोलिनियर हैं, लेकिन यदि पैरेलल नहीं हैं, आपस में पैरेलल नहीं हैं लेकिन किसी प्लेन के पैरेलल हैं, तो उनको हम किसी एक ही प्लेन पर शिफ्ट कर सकते हैं और वो सभी वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली आज के इस वीडियो में हम केवल डेफिनेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। वेक्टर का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को ड्राइव करेंगे और इन सबको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पर। तो कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द वन प्लेन और सेम प्लेन। नेक्स्ट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। नेचुरली वेक्टर required magnitude and direction both. So when we say that two vectors are equal, it means both have same direction, same magnitude. Here two vectors A and vector B are said to be equal if they have the same direction regardless of the position of their initial point. That is remarkable point. दो वेक्टर के इक्वल होने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हों, और जब इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होंगे तो नेचुरली उनके टर्मिनल पॉइंट भी डिफरेंट होंगे। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन दे रिटन एज वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर बी। In this adjoint figure you can see here there are two vectors. One vector AB, direction is from left to right, and another vector PQ, direction is same from P to Q. Both are parallel, both have same magnitude denoted by small m and small m, so they are equal vector. Then we can say that vector AB is equal to vector PQ. Next, नेगेटिव वेक्टर। अभी मैं जीरो वेक्टर की बात कर रहा था, चूंकि जीरो वेक्टर एक इम्प्रॉपर वेक्टर था और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। शायद जीरो वेक्टर यदि नहीं होता तो नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन करना टफ होता। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेस पर डिपेंड करती है। यदि किसी ट्राइंगल में हमें उसके किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे पहुंचना है, तो जब हम थर्ड वर्टेक्स को इन्वॉल्व करते हुए उस रूट को फॉलो करते हैं और फर्स्ट वर्टेक्स से थर्ड पे पहुंचते हैं, तो जो भी हमने वर्क किया है वो फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन करने वाली साइड
के अलॉन्ग विद होगा, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। जबकि लोअर क्लासेस से हम पढ़ते रहे हैं कि ट्राइंगल की दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, लेकिन वेक्टर में सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड। ये भी बात हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्राइंगल लॉ में। नेक्स्ट, लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा वेक्टर जिसको लोकलाइज किया गया है। अ लोकलाइज्ड वेक्टर इज द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर दिया गया है। सपोज आपकी स्टडी टेबल पे बुक रखी हुई है और आप उस बुक को अपने हैंड से पुश करते हैं, तो चूंकि आपका हैंड बुक को जहां टच कर रहा है वो उस फोर्स का इनिशियल पॉइंट हो गया, और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स कर रहे हैं उस डायरेक्शन में बुक मूव कर जाती है। जितनी मूव करेगी वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे एक वेक्टर जनरेट होगा। ऐसे वेक्टर को हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। फ्री वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि इस चैप्टर में जब तक ना कहा जाए तब तक जितने भी वेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स होंगे। A vector which is independent of its position in the space is known as a free vector. We only consider its length and direction. Thus, a free vector can be shifted anywhere in space by choosing an arbitrary initial point. Very important definition. यदि हम आपसे कहते हैं, मान लीजिए किसी क्लास में 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनका फेस बोर्ड की तरफ है, नेचुरली कॉपी भी उनके फ्रंट में है, सारी कॉपीज बोर्ड के पैरेलल रखी हुई हैं, कॉपीज का जो फ्रंट एज है बोर्ड के पैरेलल है। अब मैं यदि बोलता हूं सभी बच्चों से कि जिस वॉल पे बोर्ड हैंग है उस वॉल पर परपेंडिकुलर वेक्टर अपनी कॉपी पे फॉर्म करिए जिसका मैग्नीट्यूड सपोज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, तो ऑल स्टूडेंट्स विल मेक अ वेक्टर ऑन देयर कॉपी एंड एवरी वेक्टर विल हैव same magnitude, same direction. It means in all copies we observe all equal vectors, but vector is only one because I asked to draw a vector. जितने भी बच्चे अपनी कॉपी पर उस वॉल के परपेंडिकुलर और इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, वो सभी सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। तो भले ही वो 5 या 10 कॉपीज पे अलग अलग वेक्टर बने हुए हैं, बट मैंने एक ही वेक्टर बनाने को कहा था। इसका मतलब है कि मैंने एक वेक्टर को उन 5 बच्चों की कॉपी पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस केस में उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं किया गया। नेक्स्ट, co-initial vector. 2 or more vectors having the same initial point are called co-initial vectors. In this adjacent figure, you can see that there are 2 vectors. One vector is AB and another vector is AC. Both vectors
reflected rays from point A to point B and point A to point C. There are two reflected lines from point A. Since both vectors having same initial point, point A, therefore these two vectors are called co-initial vector. And similarly, next definition, coterminous vector. If vector AB change its direction in just opposite, it means this ray AB become BA and another vector AC change its direction in opposition CA. So there are two vectors, vector BA and vector CA meet each other at point A. मीन्स दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं, ऐसे वेक्टर को कहा जाएगा कोटर्मिनस वेक्टर. नेक्स्ट डेफिनेशन, like and unlike vectors. Vectors having same sense or direction are called like vectors, but if they have opposite direction, opposite sense, then such type of vectors are called unlike vectors. शायद क्लियर हुआ होगा. ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे, बट यदि वो पैरेलल तो हैं बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट हैं, तब फिर ऐसे वेक्टर्स को अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे. नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर. यहां से शुरू होता है वेक्टर प्रॉपर्ली. आप क्लास 8th, 9th, 10th, 11th में क्वाड्रेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को प्लॉट करना चाहते थे किसी प्लेन पर. 10th तक तो आपने पॉइंट की प्लॉटिंग प्लेन पर की थी, लेकिन 11th में आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्पेस में पॉइंट को प्लॉट करते थे. एक्चुअली मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता क्यों हुई और क्यों यहाँ से प्रॉपर्ली वेक्टर शुरू होता है. लोअर क्लासेज में जब आप पॉइंट को प्लॉट करते थे तो वहाँ पे आपको कुछ नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी और उन नंबर्स को आप कोऑर्डिनेट्स बोला करते थे. कोऑर्डिनेट बोलने का मेन जो पर्पस था, चूंकि वहाँ पे मोर देन वन नंबर, दैट मीन 2 नंबर्स लिए जाते थे, वन फॉर एब्सिसा एंड सेकंड फॉर ऑर्डिनेट. तो जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपस में कोऑर्डिनेट करते थे तो उनके कोऑर्डिनेशन से एक फिक्स्ड प्लेस मिलता था और उस फिक्स्ड प्लेस को ही हम पॉइंट लिया करते थे. तो जैसे किसी पॉइंट को एक परफेक्ट और पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स्ड किया जाता था, प्लॉट किया जाता था, वैसे ही वेक्टर में पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ती है. ये पोजीशन वेक्टर ही किसी पॉइंट को फिक्स करेगा किसी प्लेन पर. कंसीडर अ पॉइंट P in space. This point P having coordinates x, y, z with respect to the origin O. Then the vector OP having point O and P as its initial and terminal points respectively is called the position vector of the point P with respect to O. यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, जब हम O के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, मीन्स व्हेन वी वांट टू शो द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, then we take always
capital letters. In this definition you can see here O is initial point, P is terminal points, so both are taken capital letters, and the support, with support we present it. Vector OP means the position vector of P with respect to O. और जब कभी स्मॉल लेटर के ऊपर सपोर्टिंग लाइन हो तो फिर वो वेक्टर किसी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है, कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन जब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो इनिशियल पॉइंट ऑलवेज ओरिजिन ही होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यदि किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा xi प्लस yj कैप प्लस jk कैप। यहाँ पे ये एरो का सिंबल है, एक्चुअली यहाँ पे कैप का सिंबल होना चाहिए, क्योंकि कैप जब हम यूज करते हैं तो यूनिट वेक्टर को शो करता है। और आई कैप ऑलवेज टेकन अलोंग विद एक्स एक्सिस, आई कैप ऑलवेज शोज द डायरेक्शन अलोंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ जे कैप इज ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, positive y-axis direction. Similarly, k cap is a unit vector. Its direction is always taken along with positive z-axis. यहाँ पे आप देख रहे होंगे x, y and z, ये कहलाते हैं स्केलर कंपोनेंट, जिसको अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो किसी पॉइंट का जो भी, किसी मूविंग पॉइंट का जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी एक ही प्लेन पर होगा, और उस प्लेन पर जब हम किसी पॉइंट को फिक्स करते हैं तो हमें फिर वही कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है। यदि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो चूंकि x एब्सिसा है जो कि x एक्सिस पे लिया गया है डिस्टेंस, और यदि उसको i कैप के साथ एसोसिएट कर दिया जाए तो बन जाता है x i कैप, मीन्स मैग्नीट्यूड x है, i कैप डायरेक्शन है, एंड दोनों आपस में एसोसिएट करके वेक्टर कंपोनेंट बनाते हैं उस वेक्टर का जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y लिए थे। तो प्लेन पर जब हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के कंपोनेंट्स होंगे, एक स्केलर कंपोनेंट और सेकंड होगा वेक्टर कंपोनेंट। तो प्लेन पर यदि कोई वेक्टर r इज इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो इसके स्केलर कंपोनेंट x एंड y होंगे, जबकि वेक्टर कंपोनेंट एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप होंगे। सिमिलरली इन 3 डायमेंशनल स्पेस यदि कोई वेक्टर r एक्सप्रेस किया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे के कैप, इसका मतलब है कि ये वेक्टर अपने स्केलर कंपोनेंट x एक्सिस पर, y डिस्टेंस y एक्सिस पर और z डिस्टेंस z एक्सिस पर ओरिजिन से कवर किए हुए है। x डिस्टेंस जो है वो i कैप की डायरेक्शन में लिया है, वो पॉइंट जिसका ये वेक्टर है y यूनिट डिस्प्लेस हुआ है j कैप की डायरेक्शन में, मीन्स y एक्सिस की डायरेक्शन में। z यूनिट डिस्प्लेस हुआ है k कैप की डायरेक्शन में,
मीन्स जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में। नाउ लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स ऑन एडिशन। एक्चुअली जब मन में आता है कि वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है, तो मन में क्वेश्चन आता है कि मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से ऐड तो हम कर सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर्स जब ऐड किए जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पे यदि दो वेक्टर्स आपस में ऐड किए गए हैं तो वो हमेशा एक वेक्टर को ही प्रोड्यूस करेंगे। एक बात ध्यान देने की है, आप किसी वेक्टर में किसी स्केलर को ऐड नहीं कर सकते, बट वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा, और ये कौन सा वेक्टर जनरेट करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डिपेंड करता है उन वेक्टर्स पर जिनका हम एडिशन ले रहे हैं। ये बातें भी हम प्रूव करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर्स। अभी मैं कुछ समय पहले बात कर रहा था कि लोअर क्लास में बताया गया किसी ट्रायंगल की दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, लेकिन चूंकि वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को देखता है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से किसी एक वर्टेक्स से यदि दूसरे वर्टेक्स पे अप्रोच करना हम चाहते हैं, जबकि हम थर्ड वर्टेक्स वाले रूट को यूज करते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, या यहां पे जैसे शो किया गया, मान लीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो P से हमें R पर अप्रोच करनी है, लेकिन हम P से R पर सीधा अप्रोच ना करके P से Q पर अप्रोच करते हैं और फिर Q से R पर अप्रोच करते हैं। तो ट्रायंगल की वन साइड को मैंने वेक्टर PQ से शो किया, सेकंड साइड को मैंने QR वेक्टर QR से शो किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने चलना स्टार्ट किया था पॉइंट P से, सो P इज इनिशियल पॉइंट और हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट R था, देयरफॉर R इज टर्मिनल पॉइंट। तो जब P वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QR लिया जाएगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू R होगा, और ये उस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी। इसलिए इस रूल को कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सभी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स यदि आपके पास दो वेक्टर हैं, तो चूंकि आपने देखा कि फ्री वेक्टर को कहीं पर भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए यहां पे बहुत ही आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए शिफ्ट बाय शिफ्टिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर्स एडिशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसके लिए बहुत आसानी से क्वाड्रिलेटरल बनाते हुए, जो कि पैरेललोग्राम का फॉर्म हो सकता है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में भी हम इस प्रॉपर्टी को ट्रायंगल लॉ के थ्रू बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अभी एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपसे कहा था कि किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर को ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी वेक्टर में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई जरूर किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल है,
हेयर रबर बैंड जो रहते हैं, जो हम अपने स्कूल्स में कॉपीज के ऊपर रबर बैंड यूज करते हैं, उस रबर बैंड को तोड़ करके एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म दिया मैंने। उसके वन एंड को मैंने अपनी फिंगर से टाइट होल्ड किया, जो कि इनिशियल पॉइंट का काम कर रहा है जहां पे मैं रबर को पकड़े हूं। दूसरे एंड को मैंने स्ट्रेस करने की कोशिश की। तो चूंकि हम फोर्स जो है इनिशियल पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो जो रबर विदाउट स्ट्रेस यदि पहले 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, तो मैंने उसको स्ट्रेस करके 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कर दिया। यहां पर जो फर्स्ट वेक्टर था हमारा रबर की लेंथ के इक्वल, अब वो नया वेक्टर एक फॉर्म कर गया और उसकी लेंथ पहले वाली लेंथ की जस्ट डबल हो गई। यदि पहले विदाउट स्ट्रेसिंग जो रबर में अपने हाथ से पकड़े था, यदि वो वेक्टर ए था, तो अब जो नया वेक्टर फॉर्म हुआ है वो होगा वेक्टर 2 इंटू वेक्टर ए। 2 यहाँ पे स्केलर होगा और वेक्टर ए ऑलरेडी मैंने पहले लिया था। इन दिस वे k इंटू वेक्टर ए बी इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज k टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। जैसा कि रबर वाले एग्जाम्पल में जो वेक्टर लिया गया था उसका मैग्नीट्यूड मैंने डबल कर दिया था। यदि हम किसी स्केलर वैल्यू k से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर में, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी k टाइम्स बढ़ जाएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मन में एक क्वेश्चन फिर आता है कि दो वेक्टर्स को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे भी तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहां पे आपको बहुत अच्छी थ्योरी मिलेगी पढ़ने। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। यदि दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहा है, तब हम ऐसे प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहेंगे। और यदि दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, तब फिर वो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहा जाएगा। डॉट प्रोडक्ट इस फिगर में आप देख सकते हैं। यदि हमने दो वेक्टर लिए हुए हैं, एक वेक्टर ओ ए है, दूसरा वेक्टर ओ बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। चूंकि वेक्टर ओ ए जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए ले रहे हैं, वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी ले रहे हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, तब फिर दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस इज गिवन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर with cos theta, where theta is the angle between both vectors। एक बात इस फिगर में पहले मैं बताना चाहूंगा, जहां बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल जिस पॉइंट पे फॉर्म करता है, उस पॉइंट से हमेशा रेस को रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। यदि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट को यदि हम O ले लें, तो थीटा जो एंगल होगा वो ओ ए एंड ओ बी के बीच होगा। यदि आप ऐसा कहें कि ये जो थीटा एंगल है ओ बी और ए ओ के बीच है, तो ये गलत है। यदि हमें एंगल ओ बी और ओ ए के बीच चाहिए है, तो ये फिर थीटा ना हो करके 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि वो एंगल फिर जो फॉर्म होगा वो इस लाइन के नीचे होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। क्योंकि हमने डायरेक्शन ए से ओ की ओर ली है, तो ये रे जो है ये यहाँ से जाएगी
और एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऑफ मैग्नीट्यूड mod of vector A and mod of vector B is given as mod of vector A into mod of vector B into cos theta, where theta represents the angle between the vectors vector A and vector B. We can express the scalar product as I say vector A dot vector B, this is dot. यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जबकि अदर हैंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू, नॉट डॉट, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। सिंस मॉड ऑफ ए दैट इज स्केलर, मॉड ऑफ बी इट इज ऑल्सो स्केलर, cos theta is scalar value, so there are three scalar values and multiply one another produce a scalar value, so this is a scalar product. इसी थ्योरी में आप प्रोजेक्शन को भी समझ सकते हैं। What is projection? In mathematics, a projection of any line on a plane or on another line, just a shadow of the line whose projection we required. एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज आप जहां पे बैठे हुए हैं वहां जस्ट आपके सिर के ओवर द हेड, सिर के ऊपर सोर्स ऑफ लाइट है, नीचे आपकी कॉपी है ब्लैंक, उस कॉपी के ऊपर आप यदि अपने पेन को जस्ट पैरेलल टू द कॉपी पकड़ते हैं तो सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज आएंगी वो पेन से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएंगी, और जहां पे पेन है उसकी शैडो आपकी कॉपी पे बनेगी। उस शैडो की जो लेंथ होगी वो जस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ पेन होगी, क्योंकि पेन जो है वो पैरेलल टू प्लेन है। ये जो शैडो है दिस विल बी ये जो लेंथ ऑफ शैडो है यही होगी प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द प्लेन। अब आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिए, एक एक्टिविटी करते। इस पेन को जो अभी आपने पैरेलल टू द कॉपी पकड़ा था, इस पैरेललिटी को खत्म करते हुए पेन को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए एंगुलर करिए। जैसे जैसे पैरेलल से हटा करके आप प्लेन और पेन के बीच का एंगल बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे वो शैडो जो पेन की आपकी कॉपी पर बन रही थी धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। मतलब उसका प्रोजेक्शन जो है वो लेस टू लेस होता जाएगा वेन एवर यू इंक्रीज द एंगल बिटवीन योर पेन एंड कॉपी एंड इमेज। वेन एवर योर पेन just perpendicular to your copy, then what should be about the shadow of the pen? Think it. 0. तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि वेक्टर OA का यदि हमें प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर OB पे चाहिए है तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए उसके दोनों एंड से दूसरे वेक्टर पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां चूंकि दोनों को इनिशियल हैं इसलिए वन एंड से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये डिस्टेंस प्रोजेक्शन होगा इस वेक्टर OA का वेक्टर OB पर, और ये प्रोजेक्शन इस फॉर्मूला से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। बस आपको करना क्या होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम जो निकालने जा रहे हैं वो इस शैडो की लेंथ जिसको हमने यहाँ पे मॉड ऑफ A इंटू कॉस थीटा लिखा है ये हमें चाहिए है। तो चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम कॉस अप्लाई करते हैं
तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यूज करेंगे। हाइपोटेनियस इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओ ए। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल कॉस थीटा, देयरफॉर बेस इज इक्वल cos theta into hypotenuse, and this is given by, in this formula, vector A dot vector B is equal mod of A into mod of B into cos theta. So mod of A into cos theta is equal vector A dot vector B upon mod of B. This is called projection of any vector on other vector. Now जो अभी हमने डिस्कस किया उन प्रॉपर्टीज को अब हम अपनी कुछ प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए इज डिफाइंड बाय 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। जैसा कि आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इसका यूज डायरेक्शन के लिए किया जाता है। यदि आप मैग्नीट्यूड डिसाइड करना चाहते हैं और यदि किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में उस मैग्नीट्यूड के इक्वल फोर्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो यदि आपने मैग्नीट्यूड मीन्स स्केलर वैल्यू को उस वेक्टर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो जो भी फोर्स होगा वो पहले वाले वेक्टर के उस मैग्नीट्यूड के टाइम्स इक्वल होगा जिसको आपने मल्टीप्लाई किया। लेकिन आपको केवल जो मैग्नीट्यूड आपने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फोर्स जनरेट करना था, केवल डायरेक्शन आपको उस वेक्टर की लेनी थी। इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने की जो प्रोसेस, if r is, since you know that if r is any vector and r is defined by xi cap plus yj cap plus zj k cap, then its magnitude is given by root of sum of square of its scalar components. Means if r is equal xi cap plus yj cap plus zk cap, then its magnitude or mod is given by root of x square plus y square plus z square. So to find the unit vector of vector A, first of all we find the magnitude of vector A. Here root of sum of square of its scalar components 3 square plus minus 2 square plus 6 square, that is completely 49. So root of 49 is equal 7. Now using the definition of unit vector of A is given by A cap, and A cap is equal to vector A upon its magnitude. Magnitude is 7 and vector is 3i cap minus 2j cap plus 6k cap. So answer is 3 upon 7 i cap minus 2 upon 7 j cap plus 6 upon 7 k cap. That is answer. Question number 2. For what value of lambda are the vector A and vector B are perpendicular to each other? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पिछली स्लाइड पे जाना होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू mod of a into mod of b into cos theta, where theta is the angle between both vectors. But if both vectors are perpendicular, then theta becomes 90, and whenever theta is 90, cos 90 is 0, and if cos 90 is 0,
then right hand part mod of A into mod of B into cos theta means 0, completely 0. So there is a condition. If two vectors, vector A and vector B, are perpendicular, then their dot product is 0. So apply this condition in question number 2. Vector A and vector B defined here by 3i cap plus lambda j cap plus k cap and another vector I cap minus 2j cap plus 3k cap. Since both are mutually perpendicular, so we apply vector A dot vector B is equal 0. Then I dot I1. Why I dot I1? ये फिर एक theoretical part. I cap always denote the direction of positive x axis. और जब I cap का I cap के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो जैसा कि पिछले स्लाइड में फॉर्मूला देखा, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप. बट आई कैप इज सेम, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो 0 होगा और ऐसे केसेस में cos 0 1 होगा. आई कैप यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ आई कैप भी 1 होगा. तो लेफ्ट हैंड में तो आई कैप डॉट आई कैप लिखा होगा, लेकिन राइट हैंड में 1 इंटू 1 इंटू 1 लिखा होगा. इसलिए आई डॉट आई ऑलवेज 1 बट आई डॉट जे इज इक्वल 0, क्योंकि आई की डायरेक्शन जो होगी आई कैप की वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, जे कैप की जो डायरेक्शन होगी वो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और दोनों के बीच एंगल होता है 90. और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो इस रूल को फॉलो करते हुए जब हम ए डॉट बी निकालते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आई डॉट आई 1 होता है, सो 3 1 इज 3. जे डॉट जे 1 होगा, देन लैम्डा इंटू -2 इज इक्वल -2 लैम्डा. k dot k 1 होगा, so 3 into 1 is equal 3. Hence here 3 plus 2 5 minus 2 lambda is equal 0. Therefore lambda is equal 5/2 and that is answer. So we can say here if lambda is equal 5/2 then both vectors become perpendicular each other. Next question. Find mod of vector x if for a unit vector A, vector x minus vector A dot vector x plus vector A is equal 15, then we have to find mod of x. Since applying distributive property, vector x dot vector x become mod of vector x square. Vector x dot vector A positive and vector A dot vector x negative. Since vectors satisfy commutative property under dot product, so they will be same but of opposite sign, they will cancel each other. And final vector A dot vector A is equal vector mod of vector A square is equal 15. But vector A is unit vector, so its magnitude is 1. Then in third line mod of x square minus 1 is equal 15. So mod of x square is equal 15 plus 1 16. ये यहाँ पे मिस्टेक है, 115 गलत लिखा हुआ है. 15 plus 1 16. Mod of x square is equal 16. So x mod of x is equal 4. Okay friends, नेक्स्ट वीडियो में कुछ थ्योरीज प्रूव करेंगे, हम कुछ आर्टिकल्स ड्राइव करेंगे और साथ ही साथ उनको अपनी प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करेंगे. थैंक यू.